स्टार्ट करने से पहले जो हमने किया था उसका एक छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रैपिड फाइट काइंड ऑफ अ थिंग, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है। सो कल जो हमने चीजें डिस्कस की थी उसमें फ्यू थिंग्स वर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टफ। सो वॉरफरिन, वॉरफरिन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स पे काम कर रहा है? अगर उसका प्रॉब्लम होगा, सो अब्डोमिनल कोआगुलेशन की बात करें तो 4 फैक्टर्स थे जो वॉरफरिन डिपेंडेंट है। तो कौन से हमारे 4 फैक्टर्स नहीं होंगे या खराब होंगे इफ यू वुड से, जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं और वॉरफरिन 279. 2, 7, 9, 10. Yeah, 1972. Yeah, exactly. So 2, 7, 9 and 10. Perfect. So that is important. That is exam favored. और heparin के लिए सबसे important factor है, even though there are 10. 4. Yeah, so 10 is the most important one. Okay, Otherwise, 2, 9, 10 and 11. Great. So talking about hemophilias. So hemophilias are autosomal dominant or X-linked recessive. Both A and B. Excellent. X-linked They're recessive. X-linked, yeah. So Wolverine brand was the autodominant dominant one. जो दोनों hemophilias and they are X-linked recessive. That is important. And out of all these 3, hemophilia A, B and Wolverine brand, किसके अंदर bleeding time ज्यादा होगा? One All will be people. Yeah, Wolverine में bleeding time ज्यादा होगा, बाकी दोनों में normal होंगे. ठीक है? और APTT prolong होगा Wolverine brand में? No, Yes or no? AM. hemophilia A में. Yeah, Molly, AM. मोरोवर, yeah, exactly. A और B में आपके APTTs prolong होंगे, सही? और joint bleeds किसमें common है? Hemophilia A. AM. Hemophilias again, yeah, important bit. ठीक है? So talking about achondroplasia, उसमें हमने बात की थी there is specific mutation. I know थोड़ा सा लंबा सा नाम है लेकिन फिर भी that is important. They can ask you the fibroblast growth factor Growth receptor. factor. Yeah, ठीक है? तो उसकी mutation होती है आपकी achondroplasias में. ठीक है? तो बस वो याद रखिएगा। उसकी प्रेजेंटेशन में यहाँ से आपको अब समझ आ गई, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाथ भी छोटे, टांगे छोटी, ट्राइडेड हैंड्स, इस तरह की चीजें होंगी। ये नेजल वो अक्सर कह देते हैं कि वो है फ्लैट नेजल ब्रिजेस, इस तरह के सिनेरियोज होंगे। ठीक है। तो एटीएन, सो एटीएन में हमने बात की थी इस्कीमिया की और नेफ्रोटॉक्सिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स कौन सी थी जो ट्रिगर करती हैं एटीएन को? Aminoglycosides. Aminoglycosides, वेरी गुड। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा यूरिन में, कैसे कास्ट होंगे? Red. Brown. Brown cell Brown. cast. Yeah, exactly. So muddy brown cast will be seen in the urine. So that is also very particular for ATN. Then you will be able to easily pick this up. Good, good. Adrenal medulla तो easy था, उसमें से क्या एक चीज याद रखना है, क्या secrete कर रहा है वो? Adrenal medulla. Epinephrine and Catecholamines. Yeah, दोनों. Perfect. Catecholamines. Both your epinephrines and non-epinephrines. ठीक है? The pathophysiology is for the pheochromocytomas. Now talking about the L-captonuria. ठीक है? उसमें कौन सा enzyme deficient है? Homogenetic. या homogenistic Something. dioxide. I know it's a very अजीब सा नाम। असल में Oxidase, हम I ना think. ये देख रहे होते हैं ना, हमने एमसीक्यू देख के करना होता है, तो हमारी ना बोलने वाली इतनी अच्छी नहीं है प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल, क्योंकि ये तो क्लिनिकली रोज हम बोल भी नहीं रहे। तो आई नो कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट, कि आप जैसे आप सामने देखते हो फटाफट यू नो द आंसर, यू ठग टेक इट, but when you say it out loud so it gets a very weird pronunciation for everyone, so that's absolutely fine, so do not worry about that. ठीक है। ओके, इसमें कुछ पिगमेंटेड स्क्लेरा की बात थी। और यूरिन कैसा होता है इफ इट्स लेफ्ट अनएक्सपोज्ड? Black. अगर Black or या इट विल टर्न ब्लैक इफ इट्स एक्सपोज्ड टू द एयर। ठीक है, Yes. एंजाइम इंपॉर्टेंट हो गया। और हमने ट्रीटमेंट में एक चीज देनी थी और 2 चीजें बंद करनी है। देना क्या है ट्रीटमेंट में? Vitamin C Yeah, and we give restrict vitamin C. phenylalanine and tyrosine. Yeah, and phenylalanine and tyrosine will be restricted. You do not give that. Excellent. This is your L-captonuria. Very good. So ADH again coming from the anterior pituitary or posterior pituitary? posterior. Posterior pituitary. ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही है? The Diabetes diabetes. insipidus. insipidus. Yeah. और it works on the collecting tubules. और क्या इंसर्ट करता है, कौन से चैनल्स इंसर्ट कर रहा होता है? Aquaporin. Aquaporins too. Aquaporin 2. Perfect. ठीक है। So that's about triggers भी याद रख लें कि वो आपको अंदाजा है कि जी जब ज्यादा तब निकलेगा जब आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, फ्लूइड्स कम हो रहे हैं, प्रेशर्स कम हो रहे हैं, तो वो आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा इसका ऑपोजिट है। ठीक है। गुड गुड गुड। सो एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने 2 बातें की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उसमें फोम सेल्स थे। तो फोम सेल किस सेल से बन रहे हैं? Lipids Macrophages. accumulation. या एग्जैक्टली। सो आपकी जो मैक्रोफेजेस हैं वो लिपिड खा जाते हैं एंड इट इनगल्फ्स इट एंड फॉर्म्स द फोम सेल्स। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर ही पूछ लेते होते हैं। एंड द फाइनल स्टेज ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा वाज कि जब आपका स्मूथ सेल प्रोलिफरेट करता है Smooth muscle. Movement या from मीडिया से इनटू tunica द media to या intima. इंटिमा।
So again, because there were few questions in past medicine, but I don't think so it's very important for your clinical point of view. ATN. So atrial and natriuretic peptide is coming from where? Which part Right of the atrium heart? and right Right ventricle. It's atrium. here. Yeah, so right and atrium and right ventricle. Perfect. ठीक है, और उसको डिग्रेड कौन कर रहा है? कौन से एंजाइम्स? एंडोपेप्टाइडेजेस. हाथ से बन रहा है एंड इज डिग्रेडेड बाय एंडोपेप्टाइडेजेस. ठीक है, और बेसिकली इसका काम क्या है? ये ब्लड प्रेशर कम करे, ज्यादा करे? Lower the blood pressure. Yeah, कम it कर lowers रहा the है. blood pressure. Yeah, it excretes the sodium out. So if the sodium is going out, the water is going out and everything. So ultimately it's lowering the blood pressure. ठीक. Autosomal dominant और recessive में हमने एक बात की थी जनरल के कुछ स्ट्रक्चरल डिजीजेस हैं, किसी में मेटाबॉलिक एक्सेप्शन आर देयर, यस. पर द जनरल रूल हमने क्या बात की थी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में ज्यादा कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स? Structure. Structural problem. Structural, yeah. So autosomal dominant are more Dominant. of a structural problem, Structural while problem. the recessive ones are the metabolic ones. Metabolic. Yeah, so keep those exceptions in mind. लेकिन अगर आप एक बात रख लें तो शायद एक चांसेस है कि कुछ सवाल आ जाता है कि लिस्ट दे दें आपको कि जी चूज करें इसमें से AR कौन सा है और AD कौन सा है, तो शायद इसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ पिक कर पाए. ठीक है जी. बाकी हमने अच्छा 22 अभी हम आज करेंगे. हम 22 से स्टार्ट करते हैं और उसके अलावा मैं देख रही हूँ हमने कुछ और. हाँ, ट्यूमर्स में हम बात की थी. सो मोस्ट कॉमन जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उसमें मेट्स कॉमन है या प्राइमरी ट्यूमर्स कॉमन है? Met. मेट्स Mets आर द common. कॉमन वन. या, और बच्चों में इज इट सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल? Infrared. Infra. या, ठीक है. सो इन किड्स इट्स इंफ्राटेंटोरियल, इन एडल्ट्स इट्स सुप्राटेंटोरियल. ठीक है. और जो एडल्ट्स हैं उसमें सबसे कॉमनेस्ट प्राइमरी ट्यूमर कौन सा है? इज इट ग्लायो या मेनिंजियोमा? Glioblastoma. Yeah, so glio is the Glioblastoma. most commonest one, and second one is meningioma. Meningioma. Peripheries पे कौन सा होगा? Near the dura जो pressure डाल रहा होगा. Meningioma. That is Meningioma. meningiomas. ठीक है. और ग्लायो के अंदर क्या था? एक कौन सा रिंग? It enhances. Solid है और contrast के ऊपर you will have enhancement of the contrast. ठीक है, इससे आपको पता चलता है. और कोई भी ट्यूमर, कोई भी मेट्स अगर आपके वो करा रहे हैं, एडिमा करा रहे हैं, तो what's the choice of medication? Dexamethasone. Dexamethasone. Dexa they love it. ठीक है. So talking about breastfeeding, in a HIV mother, can she breastfeed or not? No, it's contraindicated. It's contraindicated. And what about galactosemia? Those patients? Contraindicated. No. Again, a contraindication. Yeah. So these are the two contraindications. Talking about the drugs, if someone is on trimethoprim, can they breastfeed? Trimethoprim. Because no. It's Yes. contraindicated. हाँ. Yes. वो safe है, वो आप ले सकते हो ना. That can be given to a mother with breastfeeding. ठीक है. ग्रेट. सो यहाँ पे हमने वेरी गुड, अच्छा रिकैप हो गया. हमने देखिए 10 मिनट में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिकैप कर ली. द रीजन आई डिड दैट बिकॉज क्लिनिकल साइंसेज इज वेरी डॉन्टिंग एट लीस्ट फॉर मी. तो अब हम शुरू करते हैं 22 से. लेट मी शेयर द स्क्रीन. सॉरी. अच्छा 22 में हम इस तरह करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है. वी विल रीड द थिंग्स आउट एज वेल एंड आई विल ट्राई टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एवरी काइंड ऑफ बाइस ना, तो ताकि हमें समझ आ जाए हो क्या रहा है. इंस्टेड ऑफ पूरा रोटा लगाने के, अगर आप एग्जाम्पल समझ आएंगे ना, तो जो भी सिनेरियो आएगा इट विल बी इजी टू रिमेंबर. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल. एक सेकेंड. कहाँ गया? या दिस इज बाइस्ड. So can you see my screen, guys? Is it visible? Yes. Great. ओके. सो जनरली हमने बात की थी बायस का होता क्या है, तो उसमें वही था कि इसमें कोई ना कोई ऐसी आपकी हल्का सा फेवरेट कर दें किसी एक ग्रुप को. जब हम दो चीजों को टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका बायस हो सकता है. और हमने क्या एग्जांपल एक जनरली डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, आपने एक न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई, एक को आपको पता है, आंसर तो नहीं पता होना चाहिए, शुड बी ब्लाइंड, बट इफ यू नो कि सर्टेन पीपल आर ऑन अ न्यू ड्रग एंड सर्टेन पीपल ऑन अ प्लेसिबो, होगा क्या? जो आपका क्वेश्चनर होगा, आप चाहते हैं दैट न्यू ड्रग टू वर्क ना, तो आप उससे ज्यादा सवाल पूछेंगे पॉजिटिव के बारे में. ठीक है. हो सकता है कि लेस पेन की चीजें आप रिकॉर्ड करें. तो इस तरह थोड़ा सा अगर आपको कोई भी आपका इस तरह की हरकत की वजह से अगर आपके रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये बायस हो गया. यहां तक क्लियर होगी? सो वी डोंट वांट अ बायस. अब द क्वेश्चन इज दैट कि देयर आर अ लॉट ऑफ बायसेस गोइंग ऑन. सो अब हम सबके बारे में बात करते हैं. सो एरर इन असाइनिंग इंडिविजुअल टू ग्रुप्स लीडिंग टू डिफिकल्टीज व्हिच मे इन्फ्लुएंस द आउटकम. सॉरी. सो सबटाइप्स में क्या है? सैम्पलिंग बायस where the subject are not representative of the population. This is called sampling bias. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल लेते हैं.
आपने एक स्टडी करनी है एक्सरसाइज के हवाले से, ठीक है, और आपने उसमें उन लोगों को इंक्लूड कर लिया जो कि जिम जा रहे हैं, ठीक है। सो योर स्टडी इज ऑन एक्सरसाइजेस एंड यू ओनली इंक्लूड पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका सैंपल इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपने उन लोगों को तो इंक्लूड ही नहीं किया जो जिम जा ही नहीं रहे। तो उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो बायस्ड हो जाएगा ना। आपको लगेगा कि वेरी हेल्दी एवरीवन इज गोइंग, पर नो, आपने सैंपल साइज अच्छा नहीं लिया। तो आपने जब भी कुछ स्टडी करनी है तो आपका सैंपल साइज ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो। डज दैट मेक सेंस? तो सैंपल साइज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो दैट कुड बी अ बायस। डज दैट मेक सेंस? ठीक, यस और नो? तो आप Can you पूरी repeat? पॉपुलेशन, हाँ, देखिए आपने एक स्टडी करनी है, तो आपने जो सैंपल लेना है कि जो आपका सैंपल साइज होना चाहिए उसमें बाइस नहीं होना चाहिए, इसमें सब लोगों को शामिल करना है ना। अब मिसाल के तौर पे आप एक एक्सरसाइज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब उस सैंपल में आपने सिर्फ उन लोगों को चुन लिया जो जिम जा रहे हैं और उन लोगों को नहीं चुना जो जिम जा ही नहीं रहे, तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा तो वो सही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने अच्छा सैंपल नहीं पकड़ा। तो इवन आपका सैंपल पकड़ना भी बड़ा अच्छा होता है, लाजमी होता है व्हेन यू डू अ study. That is called a sampling bias, where the subject are not representative of the population. तो उस स्टडी को आप पूरी पॉपुलेशन पे नहीं डाल सके क्योंकि आपने सैंपल साइज अच्छा नहीं लिया। आपको समझ आई बात की? दैट इज सैम्पलिंग बाइस, Yes. ठीक है। मतलब आपने बेसिकली मसला क्या है कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, वी वांट टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। सो हमने दोनों सैंपल पकड़ने हैं, वो लोग जो जिम जाते हैं और जो नहीं जाते, दोनों को एक करेंगे तो समझ नहीं आएगी। दैट इज सैम्पलिंग बाइस, ठीक है। अगला क्या चीज होता है? अगला एक कहानी है जी वॉलंटियर बाइस के बारे में। अब इसमें क्या हो रहा है? विद द सब्जेक्ट्स आर नॉट, ये तो अगला था, दिस मे बी ड्यू टू वॉलंटियर बाइस एज वेल। एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटियर बाइस वुड बी a study looking in prevalence of chlamydia in a student population. Students who are at risk of chlamydia may be more or less likely to participate in the study. ठीक है। अब वॉलंटियर बाइस में क्या नाम ऐसा ना कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें लोगों ने वॉलंटियर करना है, सही। अब कुछ लोग होते हैं शायद वॉलंटियर ना करें और कुछ लोग वॉलंटियर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टडी, सही। तो ये क्या होता है? इट हैपेंस ओनली व्हेन सर्टेन टाइप ऑफ पीपल वॉलंटियर एंड सर्टेन पीपल डू नॉट। अब क्लेमिडिया के अलावा मैं आपको एक आसान वो देने की कोशिश करती हूँ, शायद इससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। सो यू, अगर आपकी मिसाल है कि आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है, यू वांट वॉलंटियर्स फॉर दैट, ठीक है। सो अब ऑलरेडी जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो इससे गुजर रहे हैं, जो उसको जानते हैं, वो तो उस बात को समझते हैं ना, तो वो वॉलंटियर करेंगे, हाँ जी मैंने तो इस स्टडी में हिस्सा डालना है, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो they will be more interested because their self are troubling for mental health, जो भी उनकी वजह है, वो अनवेल फील कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं वो, इस वजह से वो वॉलंटियर करेंगे, हमने इसके अंदर आना है। बट देयर विल बी सम पीपल जो वॉलंटियर नहीं भी कर सकते, तो ठीक है, दिस इज व्हाट वी से बाय वॉलंटियर बायस, कि जिन्होंने वॉलंटियर करना, को पता होना चाहिए कि हर तरह का बंदा वॉलंटियर करे। अब ये नहीं जिसको फायदा हो रहा है बस वही वॉलंटियर कर रहा है, ठीक है। इस तरह क्लेमिडिया में भी वही बात वो कहना चाह रहे थे कि हु आर एट रिस्क वो आएंगे, हो सकता है बाकी लोग ना उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दैट इज वॉलंटियर बायस। आई नो बहुत छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन बस एग्जाम में हमने करना है तो हमने करना है, सही। तो जिसका फायदा होगा वो वॉलंटियर करेगा जी मैं करना चाह रहा हूँ। अब 10 लोग हैं, अब 8 लोगों को वॉलंटियर कर दिया उन्होंने जिनको ये चाहिए था, तो आपकी स्टडी सिर्फ उन वॉलंटियर्स के ऊपर बेस होगी, वो जो बाकी लोग थे वो तो इंक्लूड नहीं हो पाए, तो दैट इज वॉलंटियर बायस, ठीक है। Yes. देन वी हैव अ नॉन रिस्पॉन्डर बायस। अब इसमें क्या हो रहा है? सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर, भाई सिमिलर था तो अलग क्यों किया, पर है नहीं आओ कर दिया उन्होंने। तो उसमें क्या है जी नॉन रिस्पॉन्डर बायस। इफ अ सर्वे ऑन डाइटरी हैबिट्स हैज सेंट आउट इन अ पोस्ट to random household, it is likely that the people who did not respond would have poorer diets than the one. Okay, this non-responder bias. आपने अब सर उन्होंने बात भी की, आप लोगों ने एक ना सर्वे लिखा, उसको पोस्ट कर दिया, घरों घरों में भेज दिया, ठीक है। वो अब किसी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल डालते हैं एक चीज की। आपने डाइटरी हैबिट्स के ऊपर वो करना है सर्वे, आपने वो सर्वे लिखे, क्वेश्चन डाले और आपने रैंडम घरों में भेज दिया। अब वो लोग हु आर मोर हेल्दी ईटर्स हैं, जो कि ऑलरेडी हेल्दी डाइट्स कर रहे हैं, सो दे आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड। और वो लोग जो ऑलरेडी जंक खा रहे हैं, उनकी डाइट्स पुअर हैं, वो कहेंगे दे विल बी लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, समझाई। सो द सर्विस दैट मे बी हो जाता है कि जो आपको आंसर आ रहे हैं, आप लगे यार सब सभी बड़े हेल्दी हैं, ये नहीं पता कि रिस्पॉन्ड सिर्फ उन्होंने किया था जो हेल्दी थे,
ठीक है, तो दिस इज नॉन रिस्पॉन्डर बायस, कि जिसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपको Yes. एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे आपके सर्वे को जो कि हेल्दी डाइट वाले लोग थे, जो दूसरे थे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो दिस इज नॉन एज नॉन रिस्पॉन्डर बायस। तो हमने 3 बातें की, सैम्पलिंग की बात कर ली, वॉलंटियर की बात कर ली, और तीसरा क्या था, नॉन रिस्पॉन्डर्स। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन बायसेस हैं कि आपने सिलेक्ट कैसे करना है। वैसे हमें से ऐसा कोई है जो रिसर्च में है, who has done research or wants to do a research, और रिसर्चर है एनीवन? क्योंकि क्लिनिकल लोग कम ही होते हैं रिसर्चर्स, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, वी हैव पीपल अमंग अस हु मे लाइक टू डू इट। डू वी हैव एनीवन? वो चैट बॉक्स में कुछ आया तो है। ओके सुभान, you want to do it or you have done it? Because if you've done it, तो आप you are the best one to help us understand all this. ये आप सिर्फ करना चाह रहे हैं। अच्छा, you want to, okay, how we all want to, trust me on that, but we don't know how to do it. So that's the question. I thought किसी ने ऑलरेडी होता है ना, किसी को एपिडोलॉजी में शौक होता है, जो सर्च उन्होंने बचपन कह रही हूँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि फाइनल ईयर में शुरू हो जाते हैं सर्च करने। तो इसलिए मैं पूछी थी, if we have that kind of intellectual people among us, so they can help us. Okay, no worry. अच्छा, अगला है जी प्रेवलेंस और इंसिडेंस नीमन बायस। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ना when a study is investigated for a condition that is characterized by early fatalities or silent cases, आप एक ऐसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें डेथ्स भी हो सकती हैं, हो सकता है कि कोई केस रिपोर्ट ही ना हुआ, तो वो चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस हैपेंस जब आपके फॉर एग्जाम्पल हम सीओपीडी कर लेते हैं या वो कैंसर की बात कर लेते हैं, तो आपने कुछ स्टडी की, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को ऐड नहीं किया दैट हु हैव ऑलरेडी डाइड ऑफ दैट कंडीशन। ठीक है, या फिर वो लोग जो कि अभी जिन्होंने भी सिम्टम्स शो नहीं किए। ठीक है, तो इससे आप ना, आपका मतलब बेसिकली मसला ये होता है कि अंडर एस्टिमेट हो जाती है, वो जो सीरियसनेस है ना वो कम हो जाती है, बिकॉज अभी डिड नॉट ऐड द डेड वंस। दैट इज प्रेवलेंस और इंसिडेंस बायस। अच्छा, प्रेवलेंस और इंसिडेंस अलग से भी एक टॉपिक है, उसमें बायस नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रेवलेंस क्या होता है। ये एग्जाम फेवरेट है, इसमें तो 100% सवाल आता है। बायस की बात नहीं करी, सिंपल इंसिडेंस और प्रेवलेंस की बात करी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस पर सिर्फ सवाल आता होता है। ठीक है, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि आपने कोई ऐसी कंडीशन इन्वेस्टिगेट की और उसको जब आपने रिपोर्ट की उसमें आपका सीरियसनेस लेवल्स कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी मर चुके थे बेचारे या फिर जिनकी डिजीज आने वाली थी, हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। ये सवाल नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, लेकिन आपकी समझ आने के लिए मैं कह रही हूँ। कुछ समझ आई? ठीक है, so Yes. as a result the studies underestimated that how common or serious the condition is because we did not include the dead ones. तो आपकी स्टडी अंडर एस्टिमेट हो जाती है। ठीक, देन एक चीज होती है एडमिशन बायस। इसमें केसेस ऑफ कंट्रोल इन हॉस्पिटल केयर, ठीक है, सिस्टमैटिकली डिफरेंट फ्रॉम द वन अदर बिकॉज द कॉम्बिनेशन और एक्सपोजर टू द रिस्क एंड अक्रस ऑफ द डिजीज इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एडमिटेड। अच्छा, इसको अगर आसान फॉर्म में बात करें तो इस पे ना हमने सिर्फ हॉस्पिटल वालों की स्टडी करनी, पहली बात तो ये है। ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी, स्पेशली ना अक्सर ये केस कंट्रोल में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, when the people in the hospital are not likely a general population, so it's not about the general population, it's about the hospital people. सबसे पहले इस बात को समझना है आपने। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से आपने कोई हॉस्पिटल स्टडी की है टू लुक एट पीपल जिनको अल्सर है, स्टमक अल्सर, ठीक है, एज कम्पेयर टू वो जिनको अल्सर्स नहीं है। ठीक है, बोथ ग्रुप्स आर चूजन फ्रॉम द हॉस्पिटल पेशेंट, ये दोनों आपके हॉस्पिटल पेशेंट है, इंपॉर्टेंट बात ये थी। ठीक है, सो आपको ये लगता है कि पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल आर मोर लाइकली टू हैव अल्सर्स, ये आपकी वो है सोच, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि अल्कोहल तो सिर्फ अल्सर नहीं कराता ना, उसकी तो और भी 110 बीमारी हैं जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आएगा। तो आपको ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि सारी एडमिशंस ना अल्कोहल अल्सर की वजह से वो बंदा हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा है, नहीं, वो इसलिए दाखिल हो रहा है कि उसको अल्कोहल की और वजूहत भी तो हो सकती है ना। ठीक है, तो इट अपेयर्स कि यस अल्कोहल की वजह से उसकी अल्सर की मसाइल और इसलिए वो बार-बार एडमिट हो रहा है, लेकिन ये बायस्ड है। ही इज नॉट ओनली बीइंग एडमिटेड फॉर द अल्सर्स, ही इज बीइंग एडमिटेड फॉर अदर रीजंस बिकॉज ऑफ अल्सर एज वेल। डज दैट मेक सेंस? Yes. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन बायस। सही, तो हॉस्पिटल के लोग होंगे और आप बस ये देख रहे हो कि दो कोहोर्ट्स को आप कंपेयर कर रहे हो और उनके एडमिशन रेट्स देख रहे हो ये सोच के कि अल्कोहल की वजह से स्टमक अल्सर्स होते हैं, इस वजह से एडमिशन ज्यादा होंगे सही, लेकिन कुछ एडमिशंस अल्कोहल अल्सर्स के बगैर भी सकते हैं, हो सकता है किसी और वजह से आया हो।
कोई विड्रॉल सिम्टम्स हो गए, कोई कोई क्या होता है वो वर्ड नहीं नहीं इसको, सो अल्कोहल तो पूरी जिस्म को अफेक्ट करे, किसी वजह से एडमिट हुआ हो और हमें लगा हो कि नहीं वो अल्सर उसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज एडमिशन बायस। ठीक है, फिर अगली कहानी है जी रिकॉल बायस की। रिकॉल बायस में क्या हो रहा है, रिकॉल सोचना पड़ा है मरीज को, ठीक है, सो नॉट मरीज को, स्टडी वालों को। सो डिफरेंस इन द एक्यूरेसी ऑफ रिकलेक्शन रिट्रीव फ्रॉम द स्टडी पार्टनर्स। तो रिकलेक्शन के ऊपर आपने एक सवाल किया, अब उसमें आप सर्वे कर रहे हो, उसने रिकॉल करना है, सोचना उसके बारे में, और फिर आपको उसके बारे में जवाब देना है, ये हो रहा है। सो मिसाल के तौर पे आपने एक स्टडी किया जिसमें आप देखना चाहते हो कि एस्बेस्टोसिस की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। अब वो बंदा जो कि वाकई जिसको ये मसला हुआ, वो तो सोचेगा, वो तो इच्ची बिच्ची सोचेगा, वो आज से 50 साल पहले की बातें भी सोचेगा, क्योंकि हमें वैसे जो पता है ना कि एस्बेस्टोस का जो होता है एक्सपोजर, वो फौरन तो कैंसर कराता नहीं, टेक्स 15 to 20 years टू हैव कैंसर। तो ठीक है, तो समवन हु इज सफरिंग, जो इससे गुजरा है, तो वो तो बहुत लंबा सोचेगा ना कि हाँ मैंने शिप में काम किया कि नहीं किया, मैंने पेपर मिल में काम किया नहीं किया, तो वो बहुत अच्छा रिकॉल करेगा। लेकिन वो लोग जो हेल्दी हैं, जो कंट्रोल हैं, वो शायद ना उनको सोचे भी ना इतना, ठीक है, सो उनकी डजंट मैटर ना, दे वोंट रिकॉल, इतना लंबा सोचेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो रिकॉल का मतलब ये है कि जिस ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हो उसे सोच के बताना है किसी सवाल का जवाब, सही? सो it doesn't work. So if you're looking for a study where asbestos exposure is linked to cancer, so a patient who has cancer will think more harder, है ना? वो ज्यादा सोचेगा, बहुत लंबा सोचेगा। लेकिन वो जो हेल्दी है, जो कंट्रोल है, वो सोचेगा, अगर नहीं सोचे तो इतनी मेहनत से नहीं सोचेगा। इसको हम बोलते हैं रिकॉल बायस। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? सॉरी, अच्छा मैं ना खामोशी को हाँ समझूंगी। ओके, दैट्स आवर कल्चर एज वेल। सो खामोशी इज हाँ, सो आई विल टेक दैट एज अ यस। Then comes the publication bias, ठीक है? So failure to publish results from a valid study, often as they show a negative और uninteresting। ये तो बहुत easy है ना, कि कोई आपने स्टडी की, तो वो जैसे आप चाह रहे थे उसका रिजल्ट हो, वो वैसा ना निकला, नेगेटिव निकल आया, जो आपको नहीं पसंद ऐसा कुछ निकल आया, और फिर आप उसको हाइड कर दो, तो दैट इज पब्लिकेशन बायस। जो सच्ची बात थी वो आपने नहीं की, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट इन मेटा एनालिसिस वेयर स्टडीज शोइंग नेगेटिव रिजल्ट्स मे बी एक्सक्लूडेड, उसको आपने निकाल दिया। समझ आया? ये तो इजी है ना, कि आपने कुछ स्टडी की, मेटा एनालिसिस में ये होता है कि 5-6 स्टडीज को मिलाते हैं और उन सब की स्टडी कर देते हैं, ठीक है? उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, तो आपको लगेगा यार नेगेटिव रिजल्ट है तो उसको तो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, कुछ छापेगा नहीं, कोई पब्लिश नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने नेगेटिव रिजल्ट्स निकाल दिए और सिर्फ अच्छी चीजें पोस्ट कर दी, दैट इज पब्लिकेशन बायस। सही? अगला क्या है जी? सॉरी, एक्सक्यूज मी, वर्कअप बायस। एक स्टडी विच कंपेयर्स न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट विद अ स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि नया टेस्ट कोई इजाद हो गया, उसको आपने गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? सो उसमें वर्कअप बायस कुड बी एन इशू, और वो क्या होता है उसको मैं और जरा आसान लफ्जों में बताती हूँ। तो लेट मी थिंक। सो दिस हैपेंस, ये तब होगा जब वही बात है कि आपके पास न्यू टेस्ट भी आ गया और आपके पास गोल्ड डायग्नोस्टिक भी आ गया। इफ द डॉक्टर जो कि टेस्ट यूज कर रहे हैं, उसने ही ओनली यूजेस द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, उसे वो तब करता है जब नया टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक न्यू टेस्ट वाला ट्राई किया और वो पॉजिटिव आ गया, और फिर आपने कहा ओके ये पॉजिटिव आ गया, तो अब मैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपकी चीजें मिस हो सकती हैं, इनकरेक्ट रिजल्ट हो सकते हैं, सही? क्योंकि आपने तो बायस हो गया ना कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसलिए आपने गोल्ड स्टैंडर्ड कराया, वरना आप गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं करा रहे थे जो कि आपका न्यू टेस्ट नेगेटिव हो जाए। समझा रही है? लेट बी रीफ्रेज इट। सो जो गोल्ड स्टैंडर्ड, अब देखें गोल्ड स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, रिस्की हैं, इन्वेसिव है, लाइक बिopsy वगैरह, तो डॉक्टर ने उसको स्किप कर दिया और उसने सिर्फ नया टेस्ट कराया। अगर तो वो नेगेटिव निकल आया तो आपने कहा ओके पेशेंट ठीक है, क्या जरूरत है वो टेस्ट कराने की, ठीक है? और समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट सम ऑफ द पेशेंट मे हैव द डिजीज, जो गोल्ड अगर करा लेते तो डिटेक्ट हो जाता। समझा रही बात की? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ना ऐसे करती रहिएगा, मुझे बताइएगा। वैसे इसमें से ना 22 में से आपको सवाल अगर आएगा भी तो इंशाल्लाह ना ऐसा आएगा जो आप समझ जाएंगे, जब आपको अंदाजा हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन रहा है कि 22 वो कहना क्या चाह रहे होते हैं, कहाँ कोई लोचा वोचा हो, ठीक है? सो समटाइम्स द क्लिनिशियन मे बी रिलक्टेंट टू ऑर्डर अ गोल्ड स्टैंडर्ड वन। व्हाई? हो सकता है कि वो मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, ये वो, अनलेस द न्यू टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है? जब वो आपको मिलता है फिर आप कहते हो ओके ठीक है मैं गोल्ड स्टैंडर्ड करा लेता हूँ।
Because this approach can seriously distort the result of the study and alter values such as specificity and sensitivity. ये जो है ना, आगे हम अलग टॉपिक है इसका, इसमें से भी सवाल आता होता है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समटाइम वर्कर बायस जो होता है, वर्कर को भी बताया कि टेस्ट कौन सा करना है, कैन नॉट बी अवॉइडेड इन दीज केसेस, मस्ट बी जस्टिफाइड बाय द रिसर्चर। तो रिसर्चर को बताना होगा कि रीजंस क्या है उसकी। उसके बाद क्या है जी आपका expectation bias, only a problem in non-blinded trials. Observers may subconsciously measure or report data in a way that favors the expected study outcome. ये तो easy है, सबसे आसान ये वाला था कि आपने कोई स्टडी की, ठीक है, और आपका कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, आपने उसको फेवर कर दिया। ये तो सामने सामने बात है, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो सबकॉन्शियसली यू मेजर और रिपोर्ट अ डाटा इन अ वे दैट फेवर्स द एक्सपेक्टेड स्टडी। तो दिस इज एक्सपेक्टेशन बायस, जो ये हमारी एक्सपेक्टेशन स्टडी से क्या थी, दैट मेक सेंस। ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है। यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दिस इज इजी, अ बिट इजी, नहीं बहुत इजी है, लेकिन अ बिट इजी है उससे, ठीक है। Hawthorne क्या है, describes a group changing its behavior due to the knowledge that it is being studied. ठीक है, कॉन्शियस हो गए ना, उनको पता चल गया हमारे बारे में स्टडी हो रही है, तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे और अपना ऑल्टर कर लेंगे बिहेवियर, रिस्पॉन्स, ये वो सच नहीं बताएंगे, ठीक है। ये भी इजी है। सो चेंजेस बिहेवियर बिकॉज दे आर नोन, उनको पता चलता है कि दे आर बीइंग स्टडी, ये हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अपनी। तो जो आपने सैंपल साइज किया है वो शायद उल्टी सीधी बात बताना शुरू हो जाए, तो दैट कुड बी Hawthorne। ये भी बस इतना ही बहुत है इसमें। लेट लुक प्रोसीजर और लीड टाइम, अब ये थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सो लेट लुक बायस में क्या होता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एट एन इम्पोर्टेंट टाइम, फॉर एग्जांपल स्टडीइंग अ फेटल डिजीज मेनी इयर्स लेटर व्हेन सम ऑफ द पेशेंट may have died already, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पे आपने लिया ही नहीं, अब नाउ दे आर डेड, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, ठीक। प्रोसीजर बायस occurs when the subject is different groups receive different treatment, और ये तो खई वो है ना, ठीक है, प्रोसीजर बायस। तो अगर आपने दो ग्रुप्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट के, उसमें आपने सेम प्रोसीजर के साथ आपको रिजल्ट होना चाहिए था। अब आप दोनों के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आउटकम भी सेम हो, तो वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा ना, तो दैट इज रॉन्ग, उस तरह वो नहीं करना, ठीक है। सो इट शुड बी सेम, तो ही आप कंपेयर करवाओगे ना दो कोहर्ट्स के अंदर। लीड टाइम occurs when two tests for a disease are compared. The new test diagnoses the disease earlier, but there is no effect on the outcome of the disease. अच्छा लीड टाइम, अच्छा ये बहुत मजे का है। इसमें ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि एक टेस्ट से ना बीमारी जल्दी पकड़ेगी तो आपका सर्वाइवल बदल गया, ऐसा नहीं होता। तो लीड टाइम बायस में ये होता है, मिसाल के तौर पे दो लोग हैं आपके पास, पेशेंट ए को आपने डायग्नोज किया इसी पुराने टेस्ट के साथ 65 ईयर्स में और 70 साल में मर गया, और बी में आपने डायग्नोज किया जब वो 60 का था और 70 में मर गया। हमें लग ये रहा है कि जो नया टेस्ट उसने डायग्नोज किया था 10 साल पहले, उसमें सर्वाइवल बढ़ गया, नहीं, बोथ आर डाइंग एट 70 ईयर्स। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि डायग्नोसिस पहले पकड़ा गया, तो सर्वाइवल पे तो फर्क नहीं पड़ा ना, आउटकम ऑफ द डिजीज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दे बोथ डाइड एट 70। फर्क तब पड़ता है वन वाज डाइंग एट 70 एंड वन वाज डाइंग एट 80, वो फर्क है ना। तो इसको बोलते हैं लीड टाइम बायस, ठीक है। बेशक आपकी डिजीज अर्ली पकड़ी गई नहीं टेस्ट के साथ, लेकिन डेथ तो दोनों की सेम हो रही है, जो 65 में पकड़ा गया उसकी भी और जो 60 में डिजीज पकड़ी गई उसकी भी, ठीक है। So there is no effect on the outcome of the disease. This is important. हाँ जी, थोड़ा सांस लेते हैं, let's take a deep breath and don't worry. तो थोड़ा बहुत पहले तो चलो था कि चलो जीरो पे थे हम बायस के हवाले से, so अब कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई बायस के हवाले से। If not, I will not say 100%. This is the first time you're reading about it, studying about it. When you practice your questions, you have more clarity कि अब ये सारी चीजें उन्हें टेस्ट कैसे करनी है, ठीक है। सही, हमने काफी सारे बायसेस पढ़ ली, इसमें जो ज्यादातर बायस आएंगे ना वो ये जो टॉप वाला नहीं थे, जो सिलेक्शन बायस है, अक्सर ये सिलेक्शन बायस दे देते होते हैं, इसमें से सवाल ज्यादा आता होता है, उसको तो अच्छे से कर मैडम लीजिएगा एक ताकि मेडिसिन में पब्लिकेशन बायस से क्वेश्चन आया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस उसकी जो मेटा एनालिसिस का लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन मेडिसिन। वो मतलब आपका मेटा एनालिसिस से फर्क पड़ेगा ना, ये कहना चाह रहे हैं। यस मैडम, वो पास मेडिसिन में इसके एमसीक्यूज आए पब्लिकेशन बायस का।
हाँ अच्छा, हाँ उसका कॉम्प्लिकेशन बाइस का पब्लिकेशन बाइस का, राइट? यस मैडम, सिर्फ पब्लिकेशन पब्लिकेशन बाइस, या उसमें मैडम हमने पहले जिक्र भी किया, कहाँ गया? ये सैम्पलिंग था, ये वॉलंटियर है, ये नॉन रिस्पॉन्डर है, ये पब्लिकेशन बाइस। ठीक है, बिल्कुल सही, मेटा एनालिसिस में इसका मसला है। ठीक, गुड। हाँ, ये भी बड़ा फायदा होता है। आप लोग कभी कभी टॉपिक पढ़ते ना, आपको समझ नहीं आता कि यार इसमें सवाल कैसे पूछेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देन यू विल हैव आइडिया, ओके ये बात उन्होंने ऐसे पूछी है, तो यू विल ऑल्सो, वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। थैंक यू सो मच सदाम फॉर दैट, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सो 22 से थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि 22 से ही हमने तो कर लिया था, बाकी हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, हमने कैल्शियम हीमोसिस पे छोड़ा था। ये अच्छा टॉपिक है, कैल्शियम इज अ गुड टॉपिक, इसमें अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी परेशानी वाली बात नहीं है। So what's happening here? In calcium hemostasis, so calcium ions are linked in a wide range of physiological processes. The largest store of body calcium is bones. See? So calcium levels are primarily controlled by many hormones like parathyroid, vitamin D and calcitonin. और ये तीनों के जो functions है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कैसे काम। First of all, we will talk about the parathyroid hormone. अच्छा, पैराथायरॉयड आपके दिन 3 जगह पे काम कर रहा है। इट्स वर्किंग ऑन द बोन्स, इट्स ऑन द गट एंड योर किडनीज। 3 जगह पे ये काम करके ना आपके कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल कर रहा होता है। सही? सो हाउ डज इट वर्क? सो पैराथायरॉयड का काम है बेसिकली कैल्शियम को बॉडी में इंक्रीज करना, और कैल्शियम का काम है उल्टा, वो कैल्शियम को कम कर रहा होता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमने। ठीक है, सो पैराथायरॉयड इज इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज इट इंक्रीज? ओके, उसमें हम बाद में जाते हैं। सो कैल्शियम को भी इंक्रीज करता है, फॉस्फेट को कम कर रहा होता है। ठीक है, अब कैल्शियम को कैसे बढ़ा रहा होता है? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। आई टोल्ड यू इट्स वर्किंग ऑन द बोन, सो बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो इमीडिएट एक्शन ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट टू कॉज कैल्शियम इन द एक्ससेलुलर फ्लूइड, एंड द ब्लास्ट है इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट एक्टिवेट्स द क्लास, और वो रिजॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। ये तो बोन का काम हो गया। दूसरा ये आपकी किडनी पे काम कर रहा होता है, तो वहां से रिजॉर्प्शन ज्यादा कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, इट कंजर्व्स इट। ठीक है, और थर्ड, हाँ विटामिन डी के थ्रू भी काम करता है। विटामिन डी जो है इट ऑल्सो एक्ट्स इन द किडनी, और वो भी आपके कैल्शियम को अंदर कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो है आपका फॉस्फेट, वो भी आपकी किडनी से काम कर रहा होता है। इट डिक्रीजेज द रीनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपका काम हो जाता है, पोटेशियम फॉस्फेट को बाहर जाने दे रहा है वो पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, और इसमें जिक्र नहीं है वो कहाँ चला गया, गट का भी है, इवन गट से भी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है इसकी। तो 3 काम हो रहे होते हैं। सो जनरली आप ये याद रखो एक बात फॉर द एग्जाम, कि पैराथायरॉयड हार्मोन आपके कैल्शियम को बढ़ा रहा है और फॉस्फेट कम कर रहा है। बस रिमेंबर दिस बिट, इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स, डिक्रीज फॉस्फेट। बहुत अगर याद रखना है तो एक तो बोन वाली बात याद रख लें, और विटामिन डी का रोल याद रख लें। ठीक है, so that is parathyroid, that is how it is controlling your calciums. Then we have vitamin D itself, 125 dihydroxycholine calciferol. ये अच्छा, इसका ऑपोजिट है, ये फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों को बढ़ा रहा है। इसका आपने फर्क याद रखना है, इट यू कुड बी कंफ्यूजिंग एंड दे कैन कंफ्यूज यू ऑन दिस पॉइंट। पैराथायरॉयड क्या कर रहा था? फॉस्फेट को कम कर रहा था। ठीक है, और सिर्फ इसको बढ़ा रहा था ना, लेकिन ये जो है विटामिन डी दोनों को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो इंक्रीजेस द रीनल रीअब्जॉर्प्शन, और ये गट पे भी काम कर रहा है, वहां से भी कैल्शियम अब्जॉर्ब कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, सो ऑल 3 थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग हियर। जो कैल्सिटोनिन था वो टोटली ऑपोजिट है, ये आपकी सी सेल से आ रहा है फ्रॉम द थायराइड, एंड इट इनहिबिट्स द क्लास एंड इट आल्सो इनहिबिट्स द अब्जॉर्प्शन। तो ये आपकी बॉडी में से कैल्शियम को कम कर रहा है। ठीक है, गुड। So, in general, in a nutshell, your calcium is controlled by 3 things: your parathyroid hormones, vitamin D, and calcitonin. जो आपके हैं पैराथायरॉयड, वो कैल्शियम को बढ़ाते हैं और फॉस्फेट कम करते हैं। विटामिन डी दोनों को बढ़ा रहे हैं, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम कर रहा है। ठीक है, आगे भी काइंड ऑफ रिपीटिशन ही है, देख लीजिए कोई नई बात ना हो। 2 हार्मोन्स आर प्राइमरली कंट्रोलिंग योर कैल्शियम्स, वो हमने बात कर ली। पैराथायरॉयड की बात भी होगी, विटामिन डी की भी बात हो गई। इसके अलावा हाँ, we also already talked about calcitonin as well. So what are they doing? अच्छा, ये वही उन्होंने उसी को समरी कर दिया, actions of parathyroid. Increases the calcium, decreases phosphate, it makes sense.
कैसे जी रीनल अब्जॉर्प्शन उसने ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, सारा कैल्शियम अंदर रख रहा है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, विटामिन डी, मतलब ये तो जो सारी रेपुटेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, कार्डियक एक्शन 100%, ये बहुत आता होता है, ये आपने करना है, इसकी हर बात इंपॉर्टेंट है। सो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इसकी, अच्छा मैं आपको ऐसी फिगर दिखाती हूँ, यहाँ पे फिगर नहीं है, लेट मी शो शेयर द फिगर एज वेल। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। लेट मी शेयर, उसमें ना बड़ा अच्छा एक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था, इसके अंदर था नहीं, तो लेट मी शो इट अदर फ्रॉम द पास्ट मेडिसिन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। इवन अगर आपको हाई यील्ड नोट्स बना रहे हैं, उस पर बस डायग्राम बना के लिख लेंगे कहाँ से कैल्शियम अंदर आ रहा है, जहाँ से पोटेशियम कहाँ जा रहा है, तो वो बड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज टेस्टेड इन द एग्जाम, दे लाइक टू आस्क दिस वन। कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? स्क्रीन नजर आ रही है? ये पूरा एक एफएम रशा चल रहा है 1 2 3 4 वाला, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखते हैं। सो सबसे पहले आपकी होती है रैपिड डीपोलराइजेशन, अब वो क्यों हो रही है? दैट इज 0, दिस वन, दिस इज स्टेज 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, सही। तो हमने सबका ये याद रखना है कि इन सब के पे डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, किस पे क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 को क्या बोलते हैं? रैपिड डीपोलराइजेशन, और वो क्यों होती है? जब आपका सोडियम अंदर आता है, इन, सो सोडियम इनफ्लक्स हुआ, यहाँ लिखा भी हुआ ये सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, सो डीपोलराइजेशन, तो आपका एक्टिव पोटेंशियल ऊपर चला गया, ठीक है। सो चैनल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, सही। सो याद रखें, रैपिड डीपोलराइजेशन क्यों हो रही है? सोडियम की वजह से हो रही है। अब आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे? कभी लिखा होगा इनफ्लक्स, कहीं लिखा होगा ईफ्लक्स, अब जहाँ वो कैल्शियम भी डाल देंगे, पोटेशियम भी डाल देंगे, सो दैट विल बी कंफ्यूजिंग। सो यू हैव टू रेक्टिफाई कि सोडियम इज कमिंग इन, इट्स द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम दैट इज कॉजिंग रैपिड डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर आता है ये स्टेज 1, इसको बोलते हैं अर्ली रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आपका नीचे आ रहा है एक्शन पोटेंशियल, अब ये क्यों होता है? ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, अब पोटेशियम बाहर जा रहा है, दिस वन, ठीक है। सो रिमेंबर यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे कौन है? पोटेशियम। अब ये आपका जो 2 नजर आ रहा है, ये आपका प्लेटू फेज है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। नाउ उसने कहा जी मैं भी ऐसा डाल लेता हूँ, सो कैल्शियम फ्लक्स, सो इनफ्लक्स, ई फ्लक्स एंड अगेन इनफ्लक्स, सही, कैल्शियम। और यहाँ पे प्लेटू होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन होती है। और यहाँ पे जो कि अर्ली रिपोलराइजेशन थी, अब यहाँ पे आपकी फाइनल रिपोलराइजेशन है, और ऊपर कौन से इलेक्ट्रोलाइट से सेम यहाँ पे भी होंगे। सो अर्ली रिपोलराइजेशन कौन करा रहा था गाइस? सोडियम और पोटेशियम? पोटेशियम। पोटेशियम, वेरी गुड। सो आपका डिलेड रिपोलराइजेशन भी पोटेशियम ही होगा, जो कि ई फ्लक्स होगा, सही। एंड देन वी हैव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस पे वो जो सवाल अक्सर पूछते हैं ना, यहाँ पे रेस्टिंग उस पे सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप होता है, उस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली आपका जो है वो सोडियम एंटर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसको दोबारा से किक मिलेगा तो एकदम से चला जाएगा ऊपर। इसके नीचे ना ये, हाँ ये डब्बा भी दिया हुआ है, ये हम अभी जो हम डिस्कस किए थे ना उधर, वो सेम यही है, ठीक है। सो रैपिड रिपोलराइजेशन, सोडियम इनफ्लक्स, अर्ली और जो रिपोलराइजेशन दोनों हैं वो सेम है, सोडियम सॉरी पोटेशियम इनफ्लक्स, प्लेट्यू आज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज उन्होंने पूछ रखी है। और आपका जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, उस पे क्या है जी? सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप, दिस इज आल्सो टेस्टेड इन द एग्जाम, ठीक है। तो दिस होल बॉक्स इज हाई यील्ड, इसको तो लाल से लिख लें दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। लेट मी शेयर द प्रीवियस स्लाइड, कहाँ गए हम? यहाँ पे, ठीक है। सो दैट दिस होल बॉक्स इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट बॉक्स इसमें एक था दिस वन, इसमें जो ज्यादा सवाल आता है ना वो वेंट्रिकल कंडक्शन का आता है, कि सबसे स्पीड किस में होती है? वो आपकी परकंजीज में होती है। तो आपका एट्रियल कंडक्शन स्पीड अलोंग द ऑर्डिनरी एट्रियल मायोकार्डियम 1 to 1 मिलीसेकंड, ये ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एवी कंडक्शन में 0.05 है, परकंजीज ऑफ द लार्जेस्ट एंड अचीव वेलोसिटीज ऑफ 2 to 4 मीटर मिनट्स पर सेकंड, द फास्टेस्ट कंडक्शन हेयर,
ज्यादातर सवाल यही आता है कि पूरा वो आपको दे देंगे और पूछेंगे फास्टेस्ट कंडक्शन कहाँ हो रहा है, तो आपने क्या पकड़ना है, पकंजी फाइबर इन द वेंट्रिकुलर कंडक्शन, दिस इज द एग्जाम फेवरेट बिट, इसको बस याद रखें, ठीक है। सो सब में एवी नोड, एसए नोड आपकी वेंट्रिकुलर सब में सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है जी आपकी, पकंजी फाइबर में। फास्टेस्ट कंडक्शन, शायद ये सवाल पूछने कि अगर उन्हें ऑप्शन हुआ ना पूछने का, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डब्बा है आपका, सही, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, कैल्शियम है या पोटेशियम है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनफ्लक्स है या ईफ्लक्स है। तो आपने ना सवाल को बहुत गौर से मार्क करना है, हमें लगता है कि हम तो सही करके आगे, और ये भी छोटा सा डिफर होता है ई और इन का, तो चीज खराब हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब हम वापस कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पे आ गए, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, अगेन दिस इज रेक्टिफिकेशन, सो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। और ये आपको ना हो सकता है कि बिल्कुल ऐसी आसान से सामने सामने फिगर्स दिए होंगे दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ये इवन बास मेडिसिन में भी एक दो सवाल इसके हैं, ठीक है। उसमें आप उन्होंने दिया होगा कि ये आपका हार्ट रेट है, ये आपका एन डायस्टोलिक है, इस तरह है, नाउ कैलकुलेट द इजेक्शन फ्रैक्शन, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के करना होगा, ठीक है। सही, सो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अच्छा, इसमें आप सोचोगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, तो उस सोच का आंसर उन्होंने साथ ही आगे दे दिया है कि एन डायस्टोलिक माइनस एन सिस्टोलिक, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अनदर वे टू रिमेंबर इज दिस वन, इससे भी अक्सर वो ये फॉर्मूला देते होते हैं, ये उनको पसंद है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर हमने स्ट्रोक निकाला है तो इसको यहाँ ले आएंगे, तो कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। पल्स प्रेशर आई थिंक सबको पता है, सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक, दिस इज द इजी वन, ये सबसे अच्छा था ये वाला, आसान। देन सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, मीन आर्टरी प्रेशर जो आपका मैप होता है डिवाइडेड बाय कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, एन डायस्टोलिक माइनस एन सिस्टोलिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेल साइकिल, ओके, एक और नहायत बोरिंग, मैं पहले से आपको हेड्स अप दे देती हूँ कि नहायत बोरिंग टेबल आने वाला है सेल साइकिल का। तो द सेल साइकिल सुपर बोरिंग, सो बेसिकली ना इसमें आपने ये देखना होता है कि आपका जो है ना ग्रोथ, ये आपके डीएनए की रेप्लिकेशन, ये सारा कुछ उसके बारे में मैंने बात करनी है। सो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो वो सीरीज इस डब्बे में पूरा दिया हुआ है, इस सारी सीरीज को हमने पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका जी नॉट है, दिस इज अ रेस्टिंग फेस, सुकून वाला। क्वेश्चन सेल्स मतलब वो होते हैं जो ऐसे खामोशी से पड़े हुए हैं बस, ठीक है, लाइक हेपेटोसाइट्स और आपके परमानेंटली रेस्टिंग सेल्स इन द न्यूरॉन्स, ये आपके सुकून वाली बातें होंगी। G1 इज द गैप 1, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ये वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस में से आपका सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इन G1, and this will determine the length of the cycle influenced by P53. Sorry. फिर S का नाम ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिंथेसिस हो रही होती है, सही, उसमें क्या होता है, आपकी आरएनए, डीएनए, हिस्टोन्स, सेंट्रोमेर, सब लोग सिंथेसिस फेज में आ गया। यहाँ पे G1 था, यहाँ पे G2 है। अब अगेन वो जो ऊपर साइज इंक्रीज होता है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, सेल कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज, सो इट्स इंक्रीजिंग G1 एंड G2। एस इस सिंथेसिस में आपका डीएनए आरएनए बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। एन पे फिर आके उसकी डिवीजन होनी है, वो किस में होती है, वो एम में होती है, दिस इज माइटोसिस, इसमें आपका सेल डिवाइड हो जाता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, वो ये G0, G1, G2, S और M दे देंगे, ये 5 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू पिक व्हिच इज द स्मॉलेस्ट वन, तो वो कौन सा है, M। सो M जो है पूरे सेल साइकिल्स का सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, सही, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो G0 रेस्टिंग फेज, सुकून है, G1, G2 में साइज बढ़ रहा है, रिमेंबर G1 आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है P53 से, S में सिंथेसिस है, हर चीज बन रही है, ठीक है, और M में क्या है, अब डिवीजन होगी, दिस इज अ शॉर्टेस्ट वन। ये सबसे छोटी समरी थी आपकी सेल साइकिल की।
ये 4-5 बातें इंशाल्लाह याद रखिए तो ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बस वही बात है कि ड्राई होता है, ठीक है, क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है ना। वो कहाँ माइटोसिस मियोसिस तुमने बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं यार, ये तो हमने इवन अभी भी नहीं पढ़े वो बायोलॉजी। मुझे तो FCPS सॉरी FSC याद आ गई माइटोसिस और मियोसिस देकर। सो दिस इज व्हाट इज दिस, सही। सो माइटोसिस शॉर्टेस्ट फेज। अब अगली कहानी क्या है जी, सेल डिवीजन दो तरीके हैं, माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है। अब इनकी डिफरेंसेस हैं। सॉरी, so meiosis occurs in the somatic cells while meiosis the gametes। अब जो ज्यादा सवाल अगर आएगा ना वो ज्यादा इसका आएगा, अगर आया तो, अगर इतने हम अनलकी हुए तो। ये माइटोसिस में आपके 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स होंगे, जबकि मियोसिस में आपके 4 होंगे, सही। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, रिमेंबर दैट वन। एक फर्क याद रखें, ठीक है। और इसमें क्या है, दे आर डिफरेंट। ओ सॉरी, डिफरेंट कहाँ गया, दिस इज डिफरेंट। सो माइटोसिस मियोसिस, सही। सोमैटिक गमीट्स ठीक हो गया, माइटोसिस में 2 हैं और आइडेंटिकल हैं, मियोसिस में 4 हैं और डिफरेंट है। सिर्फ अगर कुछ आएगा तो सवाल, ये फर्क ही आएगा, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, पर ये ऐसे ही है, कुछ हल नहीं है इसका। तो इन शॉर्ट G0 1, फिर S, फिर G2 और M, 5 फेजेस थे ना। अब बताएंगे इनमें से सबसे छोटा फेज कौन सा था, शॉर्टेस्ट फेज। M phase M, mitosis. या M वाज द शॉर्टेस्ट वन। और सिंथेसिस में S था, तो आपके RNA DNA किस में बन रहे हैं, S फेज में, ठीक हो गया। और आपका G1 और G2 दोनों में आपका साइज बड़ा हो रहा है। इसमें से G1 और G2 में से कौन सा इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय P53? 1, ठीक है, G1, सही। अब जब डिवीजन की बात है, इसमें मियोसिस और मिटोसिस था। माइटोसिस में कितने डिप्लॉयड डॉटर्स हैं, 2 है या 4 है माइटोसिस में, 2. या एंड मियोसिस में यू हैव 4। और दोनों में से आइडेंटिकल किसके अंदर है, Mitosis. माइटोसिस में। रिमेंबर दिस बिट, सही। अच्छा कुछ और भी मैडम सीखा है ये मैंने। पास मेडिसिन में जी जी, जीवन के हवाले से हाँ हाँ जी जी, बोले बोले। जी डॉक्टर, हाँ हाँ, आपकी आवाज अब बंद हो गई है, बोले डॉक्टर साहब। जी वहां में जाते हैं, उसको कुछ एंजाइम्स दिए हुए थे, ये वाले। डॉक्टर सदाम, can you hear me? We can't hear you. Can anyone else hear Dr. Saddam? What happened? Dr. Saddam, we lost you. मैडम मैं कह रहा हूँ कि पास मेडिसिन में इसके हवाले से MCQs है कि कौन सी फेज जो है ना वो सेल साइकिल की लेंथ को डिफाइन करता है, तो उसमें जीवन लिखा हुआ था। G1 है, very good, excellent, thank you so much for that. जबरदस्त, it determines the length of the cycle, G1. Very good, thank you so much for that. Perfect, perfect. देखिए कुछ सवाल हैं इसके पास मेडिसिन में, तो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह to solve those questions. Excellent. So that was all about divisions। अच्छा नहीं नहीं, कुछ उसने कहा है रिमेंबर भी करना है, हाँ वो भी देखते हैं ना क्या क्या है रिमेंबर करने को। तो somatic cells have 22 pairs of autosomes, 22 and 1 pair of sex hormones, so 46XY या 46XX, तो ये तो जनरल बात होगी। So cells with normal chromosome complement are known as diploid cells। Gametes, ova, spermatozoa have a single copy of each chromosomes and are known as the haploid cells। बस ठीक है, इसको बस रीड आउट कर लें, इतना कोई नहीं। ओके, ये तो सबसे आई हेट दिस डब्बा, लेकिन लेट्स गो टू दिस। सो माइटोसिस में क्या हो रहा है, इट अकर्स ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द cell cycle। It describes a process in which the somatic cells divide and replicate, producing genetically identical diploid cells। This allows tissues to grow and renew itself। During the S phase of the cell cycle, the cell prepares itself for division by duplicating the chromosomes। अब उसमें भी आगे ये phases हैं, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब इसमें से भी क्वेश्चन था वैसे पास मेडिसिन में, सैडली। ओके, आखिरी में भी साइटोकिनेसिस भी है, ऐसे रखते हैं ताकि नजर आ जाए सारा कुछ। सो इन प्रोमेटाफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स allowing the microtubules to attach to the chromosomes। Sorry, see,
ना जो क्रोमोसोम है दे अलाइन इन द मिडल ऑफ द सेल, मेटा में, मिडल, एम से एम याद रखते हैं कि वो मिडल में आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन कम्स द एनाफेज, सो जो आपके पेयर्ड क्रोमोसोम है ना वो सेपरेट हो जाते हैं बाय कीटोकोर्स, और वो ऐसे से ना सेल के कोने में मूव होना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज में सेंटर पे है, एंड इन एना में दे स्टार्ट टू मूव टू द ऑपोजिट ऑफ द सेल, सेल में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टेलोफेज में ये होते हैं क्रोमैटिड्स आते हैं, दे अराइव एट द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, यहाँ पे मिडिल में थे, यहाँ पे वो हिलना शुरू हो गए और यहाँ पे वो पहुंच गए, क्रोमैटिड्स कहाँ पहुंच गए, टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन्स इन द न्यूक्लियस कंडेंस शुरू हो गया, और फिर साइटोकाइनेसिस में क्या है जी, एक्टिव मायोसिन कॉम्प्लेक्स आया जो कंट्रैक्शन वाले होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द सेल दे कंट्रैक्ट, रिजल्टिंग इन इट्स, वो पिंच करेगा और फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसकी दफा वो देख लीजिएगा कोई पिक्चर्स वगैरह गूगल के ऊपर, अगर अभी भी कोई देख सकता है तो प्लीज वो ना चैट में भी शेयर कर दें, एनी गुड पिक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक। जस्ट गिव इट अ रीड, सही। ओके अब देखिए, अब अगला जो डब्बा है थोड़ा सा काम का डब्बा है, सही है। सर आगे सा काम क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आ जाता है सवाल। अगर दोनों में से कंपेयर करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, एमआरसीपी के हवाले से, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक है जी आपका रफ, सही। दोनों के काम हमें पता होना चाहिए, दिस कैन बी आस्क। आई हैड अ क्वेश्चन फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला इन माय एग्जाम, वो मेरे एग्जाम में था ये वाला सवाल। एनी हाउ, सो रफ में क्या हो रहा है जी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोल्डिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स, ठीक। इसमें क्या है, लिपिड सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारा क्वेश्चन लिपिड सिंथेसिस का था, सही। सो आपने बहुत गौर से पढ़ना है कि सवाल पूछ क्या रहे हैं, रफ का पूछ रहे हैं स्मूथ का पूछ रहे हैं, क्योंकि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख के प्रोटीन भी डाल देगा बीच में, तो वन कैन गेट कंफ्यूज। तो रिमेंबर कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि सॉरी लिपिड सिंथेसिस हो रही है स्मूथ के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यू कैन बी कंफ्यूज, दे कैन ट्रिक यू ऑन दिस वन। अच्छा, कमिंग बैक टू द रफ वन, सो प्रोटीन तो बना ही रहा है, इसके अलावा इट्स आल्सो मैन्युफैक्चरिंग द लाइसोसोमल एंजाइम्स, ग्लाइकोसिलेशन में भी इसका काम है, ओके इट्स ओके। एग्जांपल्स ऑफ सेल्स विद एक्सटेंसिव, ये आरईआर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसके होते हैं जी, पैनक्रियाज में, गॉबलेट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको रफ मिलेंगे, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या कर रहा है, लिपिड कर रहा है, और ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स में, हेपेटोसाइट्स, टेस्टिस एंड ओवरीज में, सही। सो ये दिस मेक सेंस, इसको याद कीजिएगा, इसको नहीं भूलना। सो ऑर्गेनेल्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्लिनिकल साइंसेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अ क्वेश्चन कुड कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज हैव अ लुक ऑन द प्रोबेबिलिटी एज वेल कि किसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, सो दिस इज वन ऑफ दोस। अब गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, अब ऊपर जो प्रोटीन बने थे ना, अब ये उसको लेके पैक कर रहा है, सॉर्ट करके आगे भेज रहा है, ठीक है। सो मॉडिफाइज, स्टोर्स एंड पैकेजेस दीज मॉलिक्यूल्स दैट आर डेस्टिन्ड फॉर द सेल सिक्रीशन, फिर उसको आगे भेजता है, ठीक है। सो इसका काम पैकिंग में है, सही। द एडिशन ऑफ, हाँ एक सवाल आपको ये भी मिलेगा कि किस पे ये वाला काम भी हो रहा था गोल्जी एपरेटस में। सो एडिशन ऑफ मेनोज 6-phosphatase प्रोटीन्स डिजाइंस ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम्स, that is Golgi apparatus. So far, 2 important bits: endoplasmic reticulum. Remember the smooth one and the rough ones. Rough lysosomes and proteins. Where do you find them? Pancreas, goblet cells, and plasma cells. While the smooth ones, lipid synthesis. Where do you find them? Hepatocytes, testes, ovaries, and adrenal glands. For the Golgi apparatus, remember 2 things. जो ऊपर चीजें बन रही है उसकी पैकेजिंग वगैरह कर रहा है. And secondly, addition of 6-monase phosphate. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, ये तो हम सबको पता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन कंट्रोल्स द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एज सर्कुलर डीएनए, पावर हाउस ऑफ द बॉडी क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस क्या कर रहा है जी, डीएनए मेंटेनेंस भी है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है। तो द प्रोसेस दैट रिमूव्स द इंटरवाइनिंग non-coding sequence of the genes introns from the pre-mRNA and joins the protein coding sequences. Okay.
सो आप बस ऊपर ही बात याद रख लें कि डीएनए मेंटेनेंस, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड स्लाइसिंग हो रही होती है यहाँ पे। ओके हाँ, ये लाइसोसोम इज इम्पोर्टेंट, ये इनको पसंद है पूछना। ठीक है, सो ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, इनकी तोड़ फोड़ में किसका रोल है? लाइसोजाइम्स का। न्यूक्लियोलिस राइबोसोम प्रोडक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस इज वेल। ठीक है, अब वो राइबोसोम यहाँ बन गई है, वो करते क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक चलेंगे हम लोग, बहुत बेसिक बायोलॉजी में चलेंगे, बट दिस यू हैव टू नो दिस स्टफ। Peroxisomes, catabolism of the large fatty chains and amino acids. ठीक है, the result in the formation of hydrogen peroxide, peroxisome की बात हो रही है यहाँ पे। Then protosomes, so along with the lysosomal pathway involved in degradation of proteins, again ये भी तोड़फोड़ कर रहे हैं आपके, and they have been tagged with ubiquitin. Let's go back. So endoplasmic reticulum और Golgi precursor और सांन था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल है, उसमें सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, बिल्कुल ठीक हो गया। न्यूक्लियस का था, डीएनए और आरएनए के सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आपके बड़े बड़े प्रोटीन्स और तोड़ फोड़ है, आपके पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ रहा है। न्यूक्लियोलस का ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि ये राइबोसोम की प्रोडक्शन कर रहा है, और फिर राइबोसोम क्या कर रहा है आगे? वो आरएनए को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, और ये दोनों अगेन ये जोम्स हैं सारे, ये पेरोक्सिसोम्स, प्रोटियोसोम्स, ऊपर हमने लाइसोसोम पढ़े थे, ये हमारे बड़े चीजों को छोटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही, और इन सब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ से आ रही है? पर ऑक्सी से याद रखें, पेरोक्सी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो दैट यू डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, सो कम अप विद एनी स्टोरीज। ठीक है, तो ऑर्गेनिल्स कुड बी टेस्टेड, इसको अच्छे से कीजिएगा। सेल्फ सरफेस प्रोटीन्स, इसमें से जो अगला टेबल है वो ज्यादा, उसमें से एक दो तीन है जिसमें से आएंगे। ठीक है जी, दिस टेबल शोज द मोस्ट कॉमन सेल सरफेस प्रोटीन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर सेल टाइप। डू नॉट रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस वन। और इसमें से भी ना सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका CD4 इंपॉर्टेंट है, ये वो पूछते होते हैं। CD8 उनको पसंद है, CD15 और एक एब्सेंट बार वायरस में CD21। तो ये इतनी CD कहाँ याद रखे ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो रिमेंबर द इंपॉर्टेंट बिट्स। ठीक है, तो CD4 CD8 का जिक्र आपने बहुत सुना होगा, स्पेशली HIV में। हैव यू हर्ड अबाउट इट? CD4 लेवल, CD8 लेवल्स इन HIV? यस और नो? यस मैडम। है ना, ये तो बहुत कॉमनली सुना हुआ है, तो हम वही बात करेंगे जो थोड़ा सा कॉमन है। सही है, एब्सेंट बार वायरस और ये तो आपके जो स्टर्न रीड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये उसके अंदर होते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। तो ये 3-4 सवाल हैं जो पासवर्ड से भी इसमें फोकस किया हुआ है, वही आपका क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग ऑफ दीज ना। इफ यू वांट टू गो थ्रू देम, यस बी माय गेस्ट, डू गो थ्रू देम, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट बिट्स जो आप इस एटलीस्ट ये कर लो, अगर सारा पॉसिबल नहीं है। देखो इसमें कितने CD1s हैं, कहाँ तक है ये? तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, वी कांट रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक, तो लेट्स फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट बिट्स। अच्छा ये जो है ना ये वाला, सो MHC, ये जो है ना, आगे हम ना इसका पूरा अलग से करेंगे, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये वहां डिस्कस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया इसका। सो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, सो CD4 दे फाउंड ऑन द हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, कोरिसेप्टर 4 आपकी वही मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 का है, यूज्ड बाय HIV टू एंटर द टी सेल्स। दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, और CD8 क्या करता है? दीज आर फाउंड ऑन द साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब फर्क देखा आपने, ये कहाँ पे है? हेल्पर टी सेल के ऊपर, और ये किधर है? साइटोटॉक्सिक पे ऊपर। ये कोरिसेप्टर है फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 का, ये भी वो पूछ सकते हैं आपसे। फाउंड ऑन द सबसेट ऑफ माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल्स, और ये जो है दे एक्सप्रेस ऑन द रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ये पूरा हॉजकिन लिम्फोमा का देंगे, ये मरीज आया है, गंदी सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी है, बायोप्सी की है, अब इस तरह का पूरा सिनेरियो होगा, फिर उसमें आपसे पूछ रहे होंगे। दैट इज एक्सप्रेस्ड ऑन रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जो कि कौन सा है? CD15 हॉजकिन लिम्फोमा, रिमेंबर दैट। ठीक है, और एब्सेंट बार वाइज भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि सोर्स का रिसेप्टर पे क्या है? CD21। तो एटलीस्ट रिमेंबर दीज 4, 8, 15 और 21, ये याद कर लीजिएगा आउट ऑफ ऑल दिस लंबी लिस्ट। If anyone has already gone through this list and they have a good formula to remember that, please do share as well. ठीक, cerebral perfusion pressure important. इसका क्या मतलब होता है जी? Defined as being the net result gradient causing blood flow to the brain.
अब जब आपका cerebral perfusion pressure है is tightly autoregulated to maximize the cerebral perfusion. It's very important, obviously. So a sharp right in the cerebral pressure perfusion may result in a rising ICP, or a fall in PP may result in cerebral ischemia. So इसकी autoregulation is extremely important, very tricky. How do we calculate? MAP minus the intracranial pressure. So following trauma, the CPP has to be carefully controlled and may require invasive monitoring of the ICP and MAP. ठीक है? So remember the formula for this one, and the correlation gets very important to auto-regulate this one. सही? We don't want the pressures. हम obviously we don't want increase ICP ना. इस वजह से control लाजमी है, but इतनी information काफी है. Childhood syndromes, okay, tricky. अच्छा, मैं ना आपको एक चीज शेयर करूंगी जो कि अगेन इट वाज इन पास्ट मेडिसिन की जो नीचे डिस्कशन नहीं चल रही होती, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, उसमें दो लोगों ने इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन भेजी हुई है. अगर किसी के पास ऑलरेडी है डॉक्टर सदाम या डॉक्टर सबीला द एक्टिव वंस, जो कि अक्सर वो देख रहे होते हैं चीजें, अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट है तो भेज दीजिएगा, अदरवाइज मैं भेज दूंगी. उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, मतलब जैसा ये है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया. ये पटाउ सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 13 है, माइक्रोसेफेलिक स्मॉल एयर्स, क्लेफ्ट लिप, polydactyly and scalp lesions है ना. So they have explained it such a way कि उन्होंने सारी पीस इकट्ठे कर लिए. पैलेट के मसाइल, polydactyly, pinhead, cleft में पैलेट के साथ, all the P's are coming together for the P. और यहाँ पे है polydactyly, समझे 13 उंगलियां, that is trisomy 13. So they have made up so small छोटी stories, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए. तो मैं उनके स्क्रीनशॉट्स अलग से भी भेज दूंगी ताकि वो भी आप याद रख लीजिएगा. तो रिमेंबर दीज चाइल्डहुड सिंड्रोम्स, कि आपके ना क्या क्या फीचर्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत मुझे मजे का लगा था. ठीक है, सो पटाओ में क्या था, थिंक ऑफ द पीस, पैलेट, polydactyly, pinhead, पैलेट के मसाइल. ठीक है, इस तरह की बातें. डज दैट मेक सेंस? सही. तो दैट इज पटाओ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13. सब कुछ छोटा छोटा और पी याद रख लें. दैट इज हाउ यू पिक पटाओ सिंड्रोम. ठीक है. Then we have the Edwards syndrome. This is trisomy 18. What's happening here? Micrognathia. So micrognathia क्या होता है बेसिकली? आपका ना ये जो नहीं होता नीचे मैंडिबल, उसका हाइपोप्लेजिया हो जाता है. ठीक है, मतलब उसमें होता है कि आपका जो लोड जो है ना वो अपने नॉर्मल से छोटा हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी से माइक्रोग्नेथिया. वो अब ये ना स्पेसिफिकली एडवर्ड में नहीं होता, किसी में भी हो सकता है, लेकिन वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन की बताइए, जब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं तो ये क्या होता है, तो उसके लिए है. लो सेट एयर्स, रॉकर बॉटम फीट, ये एक खास तरह का पाँव होता है. आप जब गूगल करोगे वैसे ना, जिससे आपने रॉकर देखा है बच्चों का, जो ऐसे कर्व सा होता है, जिससे घूम रहा होता है बच्चों का, जो रॉकर्स होते हैं, तो बॉटम उसकी शेप ही ऐसी होती है, कर्व सी. जो आपका नीचे होता है ना, जो फ्लैट होता है, जो जिसको हम डॉट्स में बोलते हैं, इट शुड बी फ्लैट ना, इसमें वो कर्व्ड होता है, इसको बोलते हैं रॉकर बॉटम फीट. इफ यू गूगल इट, आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा. एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स. तो उन्होंने ना वो एडवर्ड, इफ यू हैव सीन ट्वाइलाइट, anyone is a fan of vampire movies, उसमें एक एडवर्ड कलन का कैरेक्टर है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था कि उसका मुंह छोटा सा है, साइडों पे कान है, और तो बड़ा एक फनी तरीके से किया था, तो आपको याद आ जाता है. तो अगर आपको वो नहीं पसंद आ रहा है, if you do not know who Edward is, do not go and watch the movie right now. We don't have that much time. लेकिन if you have your own, I know थोड़ा सा insensitive हो जाता है, शक्लें बना के याद रखना, लेकिन somehow हमारी intention ही है to be insensitive, we have to remember it somehow. ठीक है, तो बगैर insensitive हुए, if you can come up with a good way to remember it, try to remember it. ठीक है, दैट इज एडवर्ड. छोटे मुंह, कान नीचे आगे हैं, कर्व्ड वो है, और फिंगर्स ओवरलैप कर रही हैं. अगर आप फिंगर्स को ओवरलैप करो ना, अपनी भी समझो 8 बन रहा है, तो 8 से आप 18 याद रखेंगे. तो ये भी हिंट है. ठीक है, ऊपर ढेर सारी उंगलियां हैं, सो ट्राइसोमी 13. यहाँ पे 8 फिंगर ओवरलैप करके, तो ट्राइसोमी 18. अगेन यू कैन रिमेंबर इट इन एनी वे पॉसिबल, इट्स अप टू यू गाइस. ठीक है. फ्रेजाइल एक्स में क्या है, अब इसमें सब कुछ बड़ा है, एवरीथिंग इज बिग. ठीक है, फ्रेजाइल एक्स जैसा होता है ना कि आपकी एक एक्स फैक्टर होता है, एक वाव बड़ा सा एक पर्सनैलिटी होती है, तो उस तरह याद रखें, एवरीथिंग इज बिग. ठीक है. सो लर्निंग डिफिकल्टी जो है, मैक्रोसेफली, लॉन्ग फेस, बिग एयर्स, मैक्रो ऑर्किडिज्म, एवरीथिंग इज बिग ओवर हियर. दिस इज हाउ यू रिमेंबर योर फ्रेजाइल एक्स. ठीक है, तो ह्यूज, द एक्स फैक्टर इज देयर, दैट इज फ्रेजाइल एक्स. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की, पटाओ, एडवर्ड और फ्रेजाइल एक्स. थोड़ा सा कुछ बना दिमाग में कि किस तरह के पेशेंट्स आएंगे. ठीक है, तो रिमेंबर द पीस, रिमेंबर द छोटी छोटी चीजें,
and remember the big चीजें. 13 and 18. Are we clear for these three before I move ahead with the next ones? Chat में कुछ चल रहा है. Yes. Yes. Let me look at the chat as well. Oh, nice. Good. Perfect. ठीक है. So then fragile X हमने कर लिया. फिर अब कुछ है जी new nouns. तो new noun में क्या है? Webbed neck, pex excavatum, short stretcher and pulmonary stenosis. Sorry, excuse me. Guys, you have to excuse me. This is a season where my allergies got triggered. So excuse me if I'm coughing a lot. Okay, so new nouns. So think of a male turner. ठीक है? Short, no neck, flat chest, pulmonary stenosis. This is a male turner. New noun. ठीक है? या nose रखे, no neck. है तो वेब नेक लेकिन नेक नहीं है, तो नो इस तरह कर सकते हैं. पेक्स एक्सकैवेटम बिल्कुल अंदर हुआ है, नो चेस्ट, शॉर्ट स्ट्रेचेस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस. दिस इज द वन जो कि डिफरेंट है, जो ऊपर हमने कहीं नहीं किया. सो रिमेंबर दैट फॉर न्यू नैंस. पेरी रॉबिन सिंड्रोम, माइक्रोग्रेथिया, अगेन वो छोटा सा ना, इसमें किसी ने बहुत फनी लिखा था, दे रॉब्ड द जॉ. ठीक है? सो रॉब्ड ऑफ द जॉ, दे डोंट हैव अ जॉ, they were robbed out it. इस तरह करके. So posterior displacement of the tongue and cleft palate. So सारा कुछ मुंह की चीजें चल रही हैं. So पेरी रॉबिन सिंड्रोम. ठीक है? तो the face things, जो नीचे की जॉ है वो भी नहीं है, टंग भी चली गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, और उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, एंड क्लेफ्ट पैलेट. So all the face things are happening in the पेरी रॉबिन syndrome. Prader Willi, hypotonia, hypogonadism and obesity. And now this is very different. ऊपर जो हमने जितनी भी चीजें की थी ना, वो Prader Willi में हमें नहीं मिल रही. That is very different. ठीक है? Hypotonia, hypogonadism and obesity. Fat banda. ठीक है? Now the clincher given in there, I don't know if I should be saying that here or not, but I'll share the screen. It was very not very ethical of me to say over here. So like again, I'll show the pictures so आपको याद हो जाना है. So that is very important. We have to memorize it. However, so I'll share you the screen for the Prader Willi. तो वो बहुत अच्छा तो नहीं मुझे कहना चाहिए, याद रखने वाले हवाले से तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, इनसेंसिटिव था, लेकिन I'll share you that. So विलियम में क्या चल रहा है? Short stretch, learning difficulties, very friendly. अच्छा, इस पे याद रखें कि a small kid with a very big heart. ठीक है? Playful boy है with a very big heart. इसका याद रखें. Short stretch जो होते हैं, love friendly होते हैं, बहुत extrovert personalities होती है, but they have heart problems. ठीक है? Supravalvular aortic stenosis, उसकी वजह से इनकी hypertrophy शुरू हो जाती है. So इस तरह आपने विलियम को याद रखना है. Small kid with a big personality, very friendly and a large heart as well. ठीक है? Short little kid. इसका याद रखेंगे तो आपको विलियम याद हो जाएगा इंशाल्लाह. तो short stature, friendly learning disability है, very friendly, and they will give you this heart problem. एक वाला हार्ट हमने यहाँ पढ़ा है, इसमें aortic stenosis, sorry, ज्यादा ही हाईलाइट कर दिया, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? pulmonary stenosis in Noonan. ठीक? आखिर में बचता है क्री टू चैट सिंड्रोम. इसमें क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक क्राई. That is how you name this one, cry की वजह से. Hence the name due to larynx and logical problems. Feeding difficulties है, learning problems है, microencephaly, micrognathia, and again hyperthyroidism. Hyperthyroidism क्या होता है? Anyone? Hyperthyroidism. Let me check. अच्छा, आपकी ना आंखों के पे स्पेस बहुत ज्यादा होती है. ठीक है? So there's abnormally increased distance between two organs, especially the eyes. They are very far spacedly. उसको hyperthyroidism कहते हैं. ठीक है? ठीक है? ओ सॉरी, मैंने गलती से शेयर स्टॉप कर दिया. सॉरी. ठीक है? सो दैट इज हाइपरथायराइडिज्म. डिफरेंस है, आप ये आंखें दूर दूर है, स्पेस. जब आप गूगल करें ना पिक्चर
इंशाल्लाह आपको याद रहेगा, मैंने ऐसे अभी खोला हुआ है, मैं साथ ही आपको ना वहां भेज देती हूँ ग्रुप में भी, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो अब आपको एक थोड़ा जनरल साइड, लेकिन ज्यादा डिटेल्स आई नो MRCPCH वालों के है ना, चाइल्ड वाले जो कर रहे हैं मेंबरशिप, उनसे पूछें, हमसे ना पूछें। सो बस मोटी मोटी बातें। let me share it in the groups as well. चलें, ठीक है, आगे चलते हैं जी क्लिनिकल ऑडिट की तरफ। यहाँ तक चीजें क्लियर है गाइस? कोई परेशानी बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोइंग टॉपिक? क्लियर मैडम। Good. So clinical audit. अच्छा, NICE defines audit as a quality improvement process that seeks to improve patient care and outcomes through systematic review of care against expected criteria and implementation of change. So quality improvement projects. और ये सब लोग करने चाहिए if you are targeting to go to NHS इंशाल्लाह UK and everything. So कोई भी आप quality improvement ऐसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके स्ट्रोक प्रोटोकॉल, आप जहाँ काम कर रहे हैं, डू यू हैव अ स्ट्रोक प्रोटोकॉल और नॉट? आप कोई अच्छी सी गाइडलाइन पकड़े, उसका स्ट्रोक प्रोटोकॉल देखिए कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, आर वी फॉलोइंग दैट और नॉट? डू वी हैव अ स्ट्रोक प्रोटोकॉल इन आवर क्लिनिक और आवर वार्ड और नॉट? अगर नहीं है, यू मेकअप के जब बंदा आएगा तो उसको हमने ये करना है, ये हमने इसके वाइटल्स देखने हैं, इसको दवाई देनी है, ये स्कैन होना है, तो वो पूरा एक लिख लें और वो आप चिपका दें। एक सर्वे से पहले करें, एक बाद में करें, दैट इज योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो वो किसी चीज से भी कर सकते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ लें एंड यू कैन डू अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको NHS में बहुत वैल्यू मिलती है। वो लोग जहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं स्पेशली, तो कोई ऐसा बंदा जो सेम सेम है, सेम लेवल की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसको तो 100% एज देंगे उस बंदे के ऊपर जिसने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नहीं किए हुए। ठीक है, सो आज से 5-10 साल पहले हर कोई यूके चला जाता था प्लैब करके भी, MRCSE भी करके, लेकिन अब ना सैचुरेशन हो गई है, हर कोई जा रहा है। आप सोचिए ना, एक सीट है जिसमें 10 लोगों ने इंटरव्यू किया है, 4 लोगों ने पकड़ लिया, उन चारों में से जिसके पास QIP होगा ना, उसको उन्होंने रखना है सबसे पहले। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बिकॉज अभी टाइम है, इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू मूव टू यूके आफ्टर डूइंग ऑल द 3 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली 3 पार्ट्स करने में टाइम है, तो इन बिटवीन इफ यू गेट अ चांस टू डू अ QIP, वो बहुत छोटा सा क्यों ना हो, लाजमी नहीं कि बहुत बड़े लेवल करना है। अगर वो कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें, उसके रिजल्ट डाल लें, तो आपकी CV इतनी स्ट्रांग हो जाएगी दैट यू विल गेट अ जॉब more easily as compared to the one who has not done a QIP. Very important. ये मैं आपको साथ इसलिए चीजें बता रही हूँ क्योंकि ये बाद में बंदा परेशान होता है कि किसी ने पहले बताया नहीं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था। ठीक है, so we suffered a lot, so that's why I'm sharing these things as well. Anyhow, coming back to the exam things, clinical type की phase, अब ये आसान है, इसको जैसे से पढ़ लेते हैं कि clinical type के 4 phases होते हैं। पहला क्या है? Exploratory studies. So it involves a small number of participants and aim to assess how a drug behaves in a human body. ठीक है, used to assess the pharmacokinetics, dynamics. Phase 0 trial helps in determining whether it is feasible to move on the further phase or not. Very important. कोई भी आपने नई दवाई इंट्रोड्यूस कराई है, ये उसके बारे में है। ठीक है, इसमें आपको ये पता चाहिए कि आपने असेस करना है कि ड्रग आपकी बॉडी में कैसे काम करेगी, तो आपके फार्माकोकिनेटिक्स, डायनामिक्स, इस पे काम करना है। यहीं पे अगर खराबी आ गई तो ये स्टडी यहीं पे रुक जाएगी, वो अगले लेवल पे नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई? फिर आती है सेफ्टी असेसमेंट। अब सेफ्टी है तो आपने साइड इफेक्ट्स देखने हैं, तो डिटरमिन द साइड इफेक्ट्स प्रायर टू लार्ज स्टडीज। ठीक है, दीज आर कंडक्टेड ऑन अ हेल्दी इंडिविजुअल, लेकिन छोटे लोगों पे हेल्दी वॉलंटियर्स बहुत लाजमी है इसके अंदर। सही, so tested on few numbers, there are healthy volunteers. Why you are doing this? To assess the side effects before you go towards the largest population group. ठीक है, तो पहले आपकी एक्सप्लोरेटरी होगी जिसमें आपके बेसिक्स है फार्माकोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, रिमेंबर, ये खराब हो गया तो चीज आगे नहीं चलेगी। सेकंड आपका सेफ्टी असेसमेंट है साइड इफेक्ट्स के लिहाज से। थर्ड क्या, ओह सॉरी, ये तो कहाँ चला गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, यहाँ पे थर्ड है एफिकेसी। सेफ्टी आपने असेसमेंट कर ली, अब आपकी एफिकेसी इन्वॉल्व्स अगेन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, उसको आपने 2 तरह ग्रुप्स बना लिए, एक्सेस द ऑप्टिमल डोजिंग है और दूसरे में आपने एफिकेसी चेक कर ली जिसको डिजीज थी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर फर्क है, यहाँ पे हेल्दी इंडिविजुअल्स है, कैन यू सी दिस वन हेल्दी, नाउ दिस इन वन वेयर द पेशेंट अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हेल्दी लोगों को पकड़ रहे हैं, कहाँ पे बीमार लोगों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, बीमार वालों को फर्दर 2 में डिवाइड कर लिया, एक के अंदर आपने
आप देखिए डोजिंग कि कितनी देनी है, किसी को बीडी में देनी है, टीडीएस में देनी है, कैसे है, और दूसरी एफिकेसी, फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। फिर आपके अगला क्या है, एसेस इफेक्टिवनेस, टिपिकली इन्वॉल्व्स हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑफन एज अ पार्ट ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कंपेयरिंग द न्यू ट्रीटमेंट विद द एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपका लंबे लोग आगे कंपैरिजन के लिए। फिर एंड पे क्या बचता है, जब सारा कुछ अच्छा हो गया तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जिसमें आपने मॉनिटर करना है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में। कभी कुछ होता नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं किसी बीमारी की 10 साल बाद, जब आई डोंट नो 5 साल बाद, व्हाटएवर, सो दिस इज फॉर दैट। सो डिफरेंट फेजेस, तो ये तो मिसमेजर इजी है। आगे कुछ आगे चीजें वो ज्यादा ट्रिकी हैं, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वो बहुत ट्रिकी है, वो आगे आ रहा है। दिस इज इजी, ठीक है। सो एक्सप्लोरेटरी फेज 0 था, जिसमें आपने शुरू की चीजें देखी, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। सेफ्टी असेसमेंट में आपने साइड इफेक्ट्स देख लिए, एफिकेसी असेस करने के लिए आपने डिजीज लॉग पकड़ लिए, फिर आपने इफेक्टिवनेस देखी बड़े लेवल के ऊपर, और एंड पे आपने पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करनी है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं तो नहीं। दिस इज योर व्हाट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल के फेसेस। सीएनएस ट्यूमर्स हमने कर लिए थे वैसे ऑलरेडी, ग्लायोमा सा कॉमन, ये तो हमने कर लिया था, ये भी कॉमन है। पीडियाट्रिक्स में मेडालोब्लास्टोमास आर द कॉमनेस्ट लीजन्स, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपने एमआरआई करना है, ये तो हमने ऑलरेडी डब्बे में कर लिया था जनरली। So usually surgeries, even if tumor cannot be completely resected, such as erasing ICP का बढ़ रहा है, ट्यूबरडबल के, ओके, दिस इज नथिंग इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दें। कॉलेजन, इस पे से सवाल आ सकता है, कॉलेजन इंपॉर्टेंट है। इसमें ना डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 2 3 4 वाले, और बीमारियां, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमने ना वैसे अलग-अलग पढ़े भी हुए हैं, आगे पढ़ेंगे भी। तो कॉलेजन इज a sensible topic. So most abundant protein in the human body plays a pivotal role in the structural integrity and the physical properties of various tissues, including bones, skin, cartilage, tendons. It is integral to maintaining not only the mechanical strength but also the functional capabilities of the tissues. बस इसे रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, collagen is characterized by ट्रिपल, अच्छा ये जो है ना, ये वाला पोर्शन की सिर्फ रीड आउट करना है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये डब्बा है, ठीक है। उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, देन वी विल डू दिस डब्बा एंड वी विल एंड द सेशन। फिर हमारा मगरिब का टाइम भी हो रहा है। अच्छा, ये तो कोलेजन का क्या है जी, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 3 चीजें हैं, उसको ट्विस्ट करने था, डीएनए ट्विस्ट हुआ है दूसरे के खिलाफ, आगे पीछे कॉइल हुआ है, उसका सोच ले इसको। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं राउंड अराउंड ईच अदर, ये स्ट्रक्चर की बात होगी। फिर सिंथेसिस है, और फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस हैं। अच्छा, सिंथेसाइज several steps starting from translation of the collagen mRNA to form the pre-coagulation, उससे फिर बट ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिफोर फॉर्मिंग द मैच्योर कोलेजन, तो वो है अंडरग्रो ब्ला ब्ला ब्ला, ना छोड़ दे इसको, बिल्कुल ही छोड़ दे इसको। ये हम करेंगे, इस पे टाइम लगा कि ये आता होता है। टाइप 1 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आएगा, ब्रिटल बोन है, ब्लू स्क्लेरा है बेबी का, हड्डियां टूट रही हैं, कौन सा टाइप का मसला है, कोलेजन टाइप 1, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक। सो बोन, स्किन, टेंडन, इसमें हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्रिजाइल बोन्स होती हैं, मल्टीपल आपकी हड्डियां टूट। अच्छा, इस पे पता है एक बहुत क्लिनिकली आता है, एक चीज होती है NAI, जिसको हम नेग्लेक्ट बोलते हैं, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी। ये ना यूके में जब आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह पेसेस में, उस पर भी आपकी इस बारे में बात होगी, जिसमें ना बच्चों को ट्रॉमा हो रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब्यूज हो रहा होता है। तो अब्यूज के जो बच्चे होते हैं बेचारे, कभी यहाँ से मार पड़ी, वहां से मार पड़ी, तो उनकी ना बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, और एक नया फ्रैक्चर होगा, एक हीलिंग फ्रैक्चर होगा, एक पुराना फ्रैक्चर होगा, इस तरह की चीजें होते हैं। अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगर डायग्नोस नहीं हुआ हुआ ना, तो अक्सर वो पेशेंट के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, और सारे सर्विस को इन्वॉल्व करते हैं, ये बच्चे का ख्याल नहीं रख ले, निगलेक्ट है, मल्टीपल ट्रॉमा, और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये पता चलता है कि इट्स नॉट निगलेक्ट, उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, बेचारे को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा था कि वो जरा सा हग भी कर लें जोर से, हल्के से ठोके भी लगे, उसकी हड्डी टूट जाती है। तो इस तरह आपने नॉन एक्सीडेंटल इंजरी को इससे फर्क करना होता है। तो जब भी आपने किसी को नॉन एक्सीडेंटल इंजरी लेबल करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज आ जाते हैं, उनका बच्चा चले जाते हैं, और बहुत लीगल केसेस बन जाते हैं। NHS की बात करी वहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसमें होता क्या है। वो हो गया, ब्लू कलर का स्क्लेरा होता है, साथ आपकी ना हेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, है थोड़ा सा मैं डिट्रैक्ट हो गई थी, दैट इज नॉन क्लिनिकल, लेकिन इंपॉर्टेंट वैसे ही। अच्छा, ये क्या है, टाइप 1 कोलेजन, ठीक है, बोन, हेयर, और इसमें हाइलैंड कार्टिलेजेस विट्रियस ह्यूमर में आपका 2 होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। हाँ, 3 में क्या है जी, एहलर-डैनियल सिंड्रोम, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट।
4 में, और ये हमने ऑलरेडी देखा है, एल्पोर्ट सिंड्रोम एंड गुड पास्चर, किडनी के मसाइल, ठीक है, वहां पे आपका कोलेजन टाइप 4 आ रहा है। और 5 में अगेन क्लासिक वेरिएंट ऑफ एलर-डैनियस सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये ऊपर ये जो कहानी लिखी हुई थी ना, इसको दफा रीड आउट करने से कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो 1, which condition? Osteogenesis imperfecta. 3 and 4, which one? Ehlers-Danlos. While 4 collagens, which condition? Alport and good pasture. Write down this table. Important table. ठीक है? I think we will end our session here. It's quite long. काफी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। थ्री एंड 5 उसमें से वेरिएंट का फर्क है, ठीक है, जो असल वाला है वो 5 ही है इन एलर-डैनियस का, ठीक है। यस, वी आर टेकिंग नमाज ब्रेक। मैं बस क्वेश्चंस देख रही थी। अभी 100% क्वेश्चन विल कम, आर यू टेलिंग अस और आस्किंग अस? समझ नहीं आई। 100% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दी सिंड्रोम, नॉट 100% आई वुड से, पर कोई ना कोई सवाल आ सकता है। जैसा ये नूनांस हो गया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। विलियम भी आ सकता है, पटाओ मे बी, तो नॉट 100%, लेकिन आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। मतलब ये ना एक ऐसा कुछ टॉपिक में कहती हूँ बिल्कुल ही छोड़ दें, दिस इज नॉट वन ऑफ देम कि आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। अब जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, इसकी जो ऊपरी बातें लिखी हुई थी उसको बिल्कुल छोड़ दें खैर है, चलेगा, ये नहीं छोड़ना। दैट इज हाउ इट्स डिफरेंट, ठीक है। तो कोई पूछ रहा था 3 and 4 का, इसमें वेरिएंट्स का फर्क है, लेते की बीमारी वही है, एहलर-डैनियस वाली, ठीक है। लेट्स स्टॉप इट हियर एंड वी विल सी यू ऑन थर्सडे नाउ। और मीनवाइल आप अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहें, और कोई भी अच्छी बात नजर आए, कोई मजे की बात, किसको याद कैसे रख सकते हैं, डू शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑलवेज हेल्प योर कलीग्स। और कुछ सवाल हो, यू कैन इवन आस्क इन द व्हाट्सएप नाउ, ओके। टेक केयर एवरीवन। एनी क्वेश्चन सो फार बिफोर आई एंड द सेशन? Yes, these notes are more than enough. इसके अलावा कुछ नहीं करना। Yes, you feel कि बहुत रैंडम है, बहुत हवाई है, and you will feel absolutely like that. अभी भी आप ऐसा फील करोगे, और जब 5 महीने बाद एंड पे पहुंचोगे तो भी for clinical science you will still feel ambiguous, you still feel uncertain because clinical science is ऐसा ही है, it's scattered, it's all over the place. इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं करना। दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज ऑल फ्रॉम पास्ट मेडिसिन, और पास्ट मेडिसिन की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मोर देन इनफ इफ यू डू इट गुड। तो अभी आपने परेशान नहीं होना। जो बाकी यूनिट्स है ना, लाइक सीवीएस, रिस्पिरेटरी, वो बहुत खूबसूरत है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी सिस्टमैटिक, तो उसमें आपको मजा आएगा। लेकिन फॉर दिस वन, सैडली, हाउ मेनी टाइम्स यू डू इट 10 times, यू विल फील अनसर्टन। ये है ही ऐसा, इट्स वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। बट रिमेंबर, दिस इज ओनली 1 यूनिट। आगे में बस 12 यूनिट्स और भी पड़े हुए हैं, 12 के 13, आई डोंट नो कितने हैं, वो सब अच्छे अच्छे हैं, ब्यूटीफुल, यू विल लव डूइंग दैट, ठीक है। तो अच्छी बात है कि बुरी चीज हम शुरू में के फालो हो जाए, सही है, ओके, ग्रेट। अल्लाह हाफिज एवरीवन।